کرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار اور بہنوں، بلدی حلقے شیخ پیٹ کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب فراز صاحب، شہر نشین و تشریف فرما تمام ذمہ داران، بزرگان ملت، عزیز دوستو، 2 فروری کے دن اس بلدیہ انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے اور مجلس اتحاد المسلمین نے شہر حیدرآباد کی جامع ترقی کے لیے جو ایکشن پلان تیار کیا ہے، اس میں مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے جس میں مختلف امور کے تعلق سے شہر کی ترقی کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، مگر میں آپ کو ایک شارٹ چند باتیں بتاؤں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ مجلس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ شہر حیدرآباد میں جو افراد اپنے گھر کا پراپرٹی ٹیکس 2000 یا اس سے کم ادا کرتے ہیں، آئندہ سال انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اس کو صرف 101 روپیہ کرے گی تاکہ پورے کے پورے لوگ ٹیکس دے سکیں۔ جو 2000 ٹیکس دیتے تھے یا 1000 یا 1500 یا 800 جو بھی تھا، ان تمام کو انشاءاللہ تعالی 101 روپے پراپرٹی ٹیکس ادا کریں گے۔ یہ ممکن ہے اس لیے کہ بلدیہ حیدرآباد کا جو بجٹ ہے وہ قریب 5000 کروڑ کا بجٹ، اور اس میں یہ اگر یہ کریں گے تو الٹا اس سے ریونیوز میں اضافہ ہوگا، کیونکہ لوگ آگے بڑھ کر اسیسمنٹ کرائیں گے اور اپنے گھر کا پراپرٹی ٹیکس بھی ادا کریں گے۔ دوسری اہم بات مجلس اتحاد المسلمین نے یہ طے کی ہے کہ شہر حیدرآباد میں مچھروں کی کثرت ہے، اور خاص طور سے آپ کے اس علاقے میں بنداون کالونی میں بھی مچھروں کی کافی کثرت ہے۔ میں یہاں پر ابھی بیٹھے بیٹھے 2-3 مچھروں کو مارا بھی اپنے ہاتھ سے، تو یہ لگ رہا تھا کہ کانگریس اور تلگو دیشم، بی جے پی، یہ تمام لوگ ایک مچھروں کی شکل میں آ رہے ہیں الیکشن میں ہماری کامیابی کو روکنے کے لیے۔ خیر یہ مچھر تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 تاریخ کے بعد آ جائیں گے، مگر جو اصلی مچھر ہے جس کی وجہ سے ڈینگو ملیریا ہوتا، اور اب اس فروری کے مہینے میں اکثر حیدرآباد میں ایک قسم کا بخار شروع ہو جاتا، تو مجلس اس بات کا ارادہ کرتی ہے کہ انٹامالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بلدیہ میں اس کو مستحکم کیا جائے گا، ایک GIS میپنگ کی جائے گی جس میں ان جگہوں کی، ان علاقات کی جو جہاں سے یہ مچھر پیدا ہوتے ہیں کی نشاندہی کر کے وہاں پر فاگنگ اور جو بھی انتظام کرنا ہے تاکہ ان مچھروں سے لوگوں کو نجات دلا سکیں۔ یقیناً ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور جو سورس ہے جس کی وجہ سے مچھر پھیلتے ہیں اس کے وہاں پر اگر صحیح کام ہوگا، انٹامالوجی کے ڈپارٹمنٹ کو مستحکم کیا جائے گا تو یقیناً اس سے کسی حد تک راحت مل سکتی ہے۔ تیسری اور اہم بات جو مجلس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ شہر حیدرآباد میں صاف پینے کا پانی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے آج سے میرے خیال سے 6 یا 7 سال پہلے میں نے شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اپنے MP فنڈ سے لگایا جو بورنگ کا پانی لے کر اس کو صاف کرتا ہے اور وہ کنلی اور بسلری کے پانی سے زیادہ صاف ہوتا ہے۔ میں لے جا کر اس وقت بلدیہ کمشنر کو دکھایا، ان کو بہت پسند آیا۔ کرشنا بابو شاید اس وقت کمشنر تھے۔ اس کے بعد شہر کے 3-4 مقامات پر لگائے گئے، اور اس کو لگانے کے بعد وہاں پہ مقامی طور پر جو بچے بیمار پڑتے تھے، ضعیف حضرات بیمار پڑتے تھے، اس میں بہت زیادہ کمی آئی۔ مجلس اس بات کا ارادہ رکھتی ہے کہ پورے شہر حیدرآباد میں سے 1500 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گے تاکہ عوام کو، خاص طور سے غریب عوام کو صاف پینے کا پانی ملے، اور یہ ملنا، صاف پانی ملنا ہندوستان کی عوام کا، حیدرآباد کی عوام کا ایک بنیادی حق ہے۔ صاف پانی فراہم کرنا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے اس علاقے میں
पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, पानी का प्रेशर नहीं आता, बार बार पानी नहीं आता। और अभी बता रहे थे हमारे जिम्मेदार कि मेन रोड से जो पानी की लाइन जा रही है और जब अंदर यहाँ पर लेन्स में आती है फिर बाई लेन्स में जाती है, उसकी वजह से बहुत परेशानी है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस इंतखाबात के बाद वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से नुमाइंदगी करके यहाँ पर जो पीने के पानी का इंतजाम किस तरीके से हम सही कर सकते, वो तमाम इक़दामात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जरूर करेगी। इसके साथ साथ मैंने इस बात का ऐलान किया है कि शहर हैदराबाद की बल्दिया में GHMC में 2450 ऐसी जायदादें हैं, पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट है, जिसको फिल करने की जरूरत है। और मजलिस वादा कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला इन पोस्टों पर जल्द से जल्द इसको फिलअप किया जाएगा, ताकि शहर हैदराबाद में जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, चाहे मुसलमान हो या बैकवर्ड क्लास के हो, उनको उनका कोटा मिलेगा। तो यकीनन ये भी थोड़ा बहुत एक राहत उन नौजवानों को मिलेगा जो तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। हमने एक असेसमेंट किया है कि GHMC में और 2700 पोस्ट निकल सकते, हुकूमत से नुमाइंदगी करके उन तमाम पोस्ट को लड़कर उसको ही मंजूर ली जाएगी, ताकि एक तो GHMC सही तरीके से चले, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रप्शन ना हो, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म और उसमें मजबूत हो, और साथ ही साथ नौजवानों को एक रोजगार का मौका उनको मिलेगा। मजलिस इस बात का भी आपसे ऐलान कर रही है कि हम शहर हैदराबाद में स्ट्रीट लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बल्दिया में फंड है मगर उस फंड को इस्तेमाल नहीं करते, उसमें काफी गलतियां हैं। मजलिस इंशाअल्लाह ताला उसको सही करेगी और स्ट्रीट लाइट का एक बजट मुख्तसस करके उन तमाम इलाकों में, यानी कोई भी ऐसे पोल पे जहां पे लाइट है वहां पर लाइट होनी चाहिए, सिर्फ शो के लिए लाइट का पोल नहीं लगना चाहिए। ये और फिर आपका ये जो शेखपेट का इलाका है, ये शहर हैदराबाद में एक डेवलपिंग इलाका है, यहाँ पर रेजिडेंशियल या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन चलता है, और जो लोग इन तमाम चीजों में इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हिस्सा लेते, वो मुझसे बेहतर जानते कि किस तरह करप्शन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में होता। तो मजलिस एक साफ और शफाफ ट्रांसपेरेंट सिस्टम को इवॉल्व करेगी, ताकि कोशिश पूरी करेंगे, मैक्सिमम करेंगे कि करप्शन कम हो। हिंदुस्तान में अगर कोई बोलेगा करप्शन कम कर दूंगा तो कोई भी यकीन नहीं करता उसको, मगर करप्शन खत्म करना अलग बात है, कम करना अलग बात है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला सिस्टमिक अगर हम डेवलपमेंट लेकर आएंगे, उन तमाम लीकेजेस को बंद करेंगे, जो एक प्लान सबमिट किया जाता है डेवलपमेंट घर का, बिल्डिंग का, कॉम्प्लेक्स का, तो यकीनन उसमें बहुत ज्यादा कमी ला सकते, और सही तरीके से बगैर किसी पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व करे, बगैर किसी मुकामी लीडर को इन्वॉल्व करे कि कॉर्पोरेटर है उनको पैसे दो, गली का लीडर है उसको पैसे दो, उन्हें है उसको पैसे दो। यानी होता इसमें क्या है कि ये तमाम चीजें गंदगी पैदा हो जाती है। तो मजलिस इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक जामे सिस्टम इन्वॉल्व करेगी, और बहुत सी चीजें उन तमाम चीजों में मजलिस ने शामिल किया, बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असेंबली की नुमाइंदगी पर हुकूमत को पहली मर्तबा ये काम करना पड़ा कि जितने आपके घर में लाइट के बिल हैं, जो 31 दिसंबर 31 दिसंबर तक अगर किसी घर में 100 यूनिट या उससे कम आप कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जितना उसका बिल है और सरचार्ज है वो मजलिस की नुमाइंदगी पर माफ कर दिया गया है। और अगर सरचार्ज अगर 100 यूनिट से ज्यादा आपका इस्तेमाल है या कंजम्पशन है, तो आपको सिर्फ बिल का अमाउंट देना है, सरचार्ज का अमाउंट देना नहीं है। ये बहुत बड़ा राहत और तमाम लोगों के लिए होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बिल ही माफ हो जाएगा फरवरी से, वो आपको टेक केयर करना पड़ेगा, वो आपको पैसे अदा करना पड़ेगा। मगर 31 दिसंबर 2015 तक जो कुछ हुआ वो मजलिस के नुमाइंदगी पर हुआ। गरीब अफराद के लिए हाउसिंग की स्कीम है, हुकूमत ने ऐलान करी कि 2 बेडरूम हाउसिंग स्कीम देंगे, मगर लड़ना पड़ता, नुमाइंदगी करना पड़ेगा, और मजलिस इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से नुमाइंदगी करेगी, हुकूमत से अगर जरूरत पड़ेगी तो एहतजाज करेगी, और हकदार को इंशाअल्लाह ताला उसका हक दिला कर रहेगी। आज शेखपेट के बाद से
बेहद जरूरी है कि आप अपने उम्मीदवार जनाब फराज साहब को अपनी पार्टी के कैंडिडेट को काम करें। आज इस हल्के से हमारी कामयाबी जरूरी है, क्योंकि याद रखिए कि हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत में हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। अगर हम पुकारते रहेंगे कि मेरा हिस्सा नहीं मिला, मेरा हिस्सा नहीं मिला, तो मेरे भाई याद रखिए कि दुनिया किसी बेवा की ऐसा पुकारने वालों की फरियाद नहीं सुनती। आज हमारे पास एक मौका है, हम आगे बढ़कर इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जरूरत है, और वो ये है कि हम अपने वोटों से अपने उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए ये शहर में हमारी एक पहचान है, इस शहर में हमारी एक शनाख्त है, इस शहर में जो तहजीब और तमद्दुन है वो हमारी वजह से है। इस शहर के बानी हम है, इस शहर का मुस्तकबिल हमसे है, और इसलिए बेहद जरूरी है कि इस शहर के बल्दिया के ऐवान में हमारा हिस्सा मौजूद हो, हमारे नुमाइंदे कामयाब हो। और ये बेहद जरूरी है कि शेखपेट से हम अपने ओर से अपनी जमात के उम्मीदवार को कामयाब करें। दीगर इलाके जाते हैं, कोई और पार्टी वहां पर कामयाब हो सकती है, मगर जब इस शेखपेट के वार्ड में 50% के करीब अगर मुस्लिम अक़लियत रहती है तो यकीनन ये आपकी सीट है, और इस पर आपकी कामयाबी जरूरी है। ये उस वक्त होगी जब हम मुत्तहिद होकर अपने वोटों का सही इस्तेमाल करेंगे, पोलिंग परसेंटेज में इजाफा करेंगे। यकीनन यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज जितना ज्यादा होना है उतना नहीं हुआ, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जिस जोश और जज्बे के साथ हमारे बुजुर्ग और तमाम सोसाइटीज के लोग जमा हुए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि पहले से ज्यादा आज तमाम लोगों का इसमें शिरकत है, इसमें आप लोगों का ताउन है, और यकीनन ये शिरकत और ताउन, मुझे पूरा यकीन है कि 2 तारीख के दिन एक बड़ा पोलिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे, एक बड़ा पोलिंग परसेंटेज यहाँ पर होगा। और नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि आप एक टीम बनाइए, ग्रुप बनाइए, लोगों को तरगीब दीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपने घर वालों का, वालिदैन का, रिश्तेदारों को लेकर जाकर वोट डालिए, ताकि सुबह के अवलीन सालों में हम अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आप जाइए पोलिंग बूथ को और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आज अंदाजा लगाइए कि आपकी कामयाबी को रोकने के लिए, आपके भाई की कामयाबी को रोकने के लिए, आपके बेटे की कामयाबी को रोकने के लिए तेलुगु देशम और बीजेपी ने यहां से अपने उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया। 150 बल्दी वार्ड में 90 सीट और 60 सीट पर इनकी मुफाहमत हुई, मगर जब मामला आता है कि नहीं, अगर मुस्लिम अक़लियत कामयाब हो सकता है तो तमाम के तमाम इनकी फिरका परस्ती सामने आ जाती। अरे जबान से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिलके रहेंगे, फुला रहेंगे, क्या क्या बोलते हैं, मगर जब असल इख्तिदार का मामला आता है, हिस्सेदारी का मामला आता है, यानी पावर का जब मामला आता है, बोलते नहीं, इनको पावर नहीं मिला, इनको पावरलेस कर दो, इनको कमजोर कर दो, और इनको आदत डालो हमारे पीछे चलने की। मजलिस आपसे क्या करेंगे कि हम पीछे किसी के नहीं चलेंगे, बल्कि हम खुद आगे चलेंगे, हम खुद अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम में वो काबिलियत है, हम में वो सोच है, हम में वो ताकत है कि दुनिया हमारे पीछे चलेगी। मगर शर्त ये कि आपको अपने आप में एतमाद पैदा करना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस आप में है, उसको और मजबूत करिए, आगे बढ़िए। ये शेखपेट की बल्दिया की सीट आपकी है, इस सीट पर आपको कामयाब होना है। ये बाहर से गैर लोग आकर हमारे घरों पर हुकूमत नहीं कर सकते। इस इलाके जात की जामे तरक्की के लिए ये बहुत जरूरी है कि यहाँ से मजलिस को कामयाबी आप दिलाएं। ये बीजेपी, तेलुगु देशम, कांग्रेस, इनको छोड़िए आप, इनका ये बोलते ना कि एक दवा होती है, एक दवा के नीचे लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, अभी दवा चलने वाली नहीं है, ये एक्सपायरी डेट है। मजलिस क्या है? मजलिस जिंदा तिलिस्मात है, फॉरएवर। हर मर्ज की दवा है मजलिस, हर मर्ज की दवा है मजलिस, और इसके लिए जरूरी है आपको कि आप शिराकतदारी सियासत में अपना हिस्सा लें। याद रखिए, जब तक हमारा हिस्सा हमको पार्लियामेंट में
असेंबली में, बल्दिया में, पंचायत में, जिला परिषद में नहीं मिलेगा। हम तमाम काम नहीं कर सकते, नाइंसाफियों का खात्मा नहीं कर सकते, क्योंकि यही ऐवान है जहां पर हमारे ताल्लुक से कवानीन बनते हैं, डेवलपमेंट का बजट बनता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप इस पर सोचिए। ये आखिरी जलसा होगा शायद शेखपेट में, इसके बाद होगा, मगर मेरे लिए तो आखिरी जलसा है। मैं इस उम्मीद पर यहाँ से जा रहा हूँ कि आइंदा जब जलसा होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए होगा कि आप अपने लोगों से अपने उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। एक नौजवान को कामयाब करिए, इसमें जज्बा है काम करने का, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने कॉर्पोरेटर्स को उस तरह की गंदी हरकत करने नहीं देंगे, बल्कि मैंने एक सिस्टम बनाया हूं कि महीने में 2 मरतबा इनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के सामने अपनी माहाना एक्टिविटीज की रिपोर्ट देना पड़ेगा, और मुकामी तौर पर वहां के सदर मोहम्मद की साइन करा करके हाँ ये महीने में इतने मरतबा यहाँ पर आए थे, ये काम वो टेकअप किए, और ये तमाम चीजें हम पूरा इन पर कंट्रोल रखेंगे, इन पर वॉच रखेंगे, क्योंकि जब आवाम निकल कर अपना वोट डालती है वो खुद एक मानों में भरोसा कर कर उस पार्टी पर वोट डाल रही है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि 2 फरवरी के दिन 40-45 मिनट निकालिए, दिन में 24 घंटे में आप 45 मिनट निकालिए। देखिए, मैं आपसे साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि हम हर जगह जाकर मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि हमको बदनाम किया जा रहा है कि मजलिस के ये लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, मगर आप जानते हैं कि आपके दिल की तर्जुमानी, आपके जज्बात की तर्जुमानी हमारे असेंबली में और पार्लियामेंट में हो, या फिर रोड पर हो, या फिर बयानात में हो, अगर कोई कोशिश करता है आपके जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, कोई और जमात नहीं है। ये सेकुलरिज्म की बात करते 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 हमको तबाह बर्बाद कर दिए, मगर जो सेकुलरिज्म का दर्ज दे रहे थे वो खुद तरक्की किए, मगर मुस्लिम अक़लियत और दलित का कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आज 2 फरवरी के दिन एक वोट का इस्तेमाल करिए, बल्कि आने वाले दिनों में आप तरगीब दीजिए एक दूसरे को, चाहे वो जिस तरीके से हो, मगर एक माहौल इस तरह का बन जाए कि अब की बार शेखपेट पर मजलिस का कब्जा होना चाहिए और यहाँ से उम्मीदवार को कामयाब करना चाहिए। मैं खास तौर से इस इलाके के, इस वार्ड के, इस बस्ती के, इस महल्ले के जिम्मेदारों से इल्तिजा गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सरपरस्ती करिए, आप रहबरी करिए, आप गाइड करिए, और यकीनन आपकी सरपरस्ती और रहबरी से ही हमको कामयाबी मिलेगी। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि अपने जोश और अपने जज्बात को काबू में रखकर 2 तारीख के दिन पोलिंग का इस्तेमाल करें, लोगों को लेकर जाए, खाली वक्त खराब मत करिए। सिर्फ 45 मिनट लगते हैं आपको अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ को जाकर अपना वोट डालकर आप आ जाइए, यही हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हमको अपना हिस्सा लेना है, हमको अपना हिस्सा बताना है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि 2 फरवरी के दिन हम अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर यहाँ से अपनी जमात की अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। शुक्रिया।